आज हम फिर एक बार सी लैंग्वेज को लेकर के यहाँ उपस्थित हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये आपकी रिवीजन की आज 5वीं क्लास है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सी फॉर्मेट स्पेसिफायर. What is format specifier in C language? The format specifier in C language is a string used in the formatted input and output functions. The format string determines the format of the input and output. The format string always start with a % symbol या character. The commonly used format specifier in printf function are: first one is %d or %i. It is used to print the signed integer value, where signed integer means that the variable can hold both positive and negative values. Second one is %u. It is used to print the unsigned integer value, where the unsigned integer means that the variable can hold only positive value. ये चीज़ बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हम साइंड इंटीजर की बात कर रहे हैं, साइंड का मतलब उसके साथ एक साइन है, प्लस साइन है या माइनस साइन है, मीन्स वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, या तो वो पॉजिटिव होगी या फिर वो नेगेटिव होगी। अगर वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हम %d या फिर %i का यूज करेंगे। अगर हमारे पास अनसाइंड इंटीजर वैल्यू है तो वो ओनली पॉजिटिव वैल्यू होगी, और उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? %u. थर्ड वन इज %o. इट इज यूज टू प्रिंट द हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर वैल्यू. सॉरी, %o. It is used to print the octal unsigned integer value, where octal integer value always start with a O symbol या फिर 0 symbol, O symbol. Second, %x. It is used to print the hexadecimal unsigned integer, where the hexadecimal integer value start with a 0x value. In this alphabet, characters are printed in small letters such as A, B, C, etc. Next है %X. It is used to print the hexadecimal unsigned integer, but %X print the alphabetical character in uppercase such as capital A, capital B, capital C. Next है %F. It is used for printing the decimal floating point value. By default, it prints the 6 values after decimal point. Next है %E or capital E. It is for scientific notation. It also known as mantissa or exponent part. Next है %G. It is used to print the decimal floating point values, and it is used the fixed precision, that is the value after the decimal in input would be exactly as same as the value in the output. For example, जैसे आपने इनपुट वैल्यू दी 12.57, तो आउटपुट में भी वैल्यू कैसी आनी चाहिए? 12.57. कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने इनपुट की वैल्यू 12.57 लेकिन आउटपुट में वैल्यू आई 12.570000, इस तरीके से। तो हम ये नहीं चाहते जो वैल्यू हमने इनपुट में दी है सेम ऐसे ही आउटपुट आए, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? %G. ऐसी %P. इट इज़ यूज टू प्रिंट द एड्रेस इन ए हेक्साडेसिमल फॉर्म. अगर आपको एड्रेस प्रिंट कराना किसी वेरिएबल का तो आपको %P लिखना होगा। ये आपने पॉइंटर में भी देखा है। %C. इट इज़ यूज टू प्रिंटिंग द अनसाइंड करेक्टर. %S. इट इज़ यूज टू प्रिंट द स्ट्रिंग, एंड %LD. इट इज़ यूज टू print the long signed integer value. So these are the format specifier in C language. Now next, programming error in C language. What are programming errors in C language? जब हम C का प्रोग्राम लिखते हैं तो C language में
बहुत सारी एरर्स हम लोग कर देते हैं या बहुत सारी एरर सिस्टम जनरेट कर देता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एरर्स होती क्या है। एरर्स आर द प्रॉब्लम्स, एरर्स आर द प्रॉब्लम्स और द फॉल्ट्स दैट अकर इन ए प्रोग्राम which makes the behavior of the program abnormal, and developers can also make these faults. Programming errors are also known as the bugs or faults. इसको आप अच्छे से समझिए। प्रोग्रामिंग एरर्स आर नोन एज द बग्स और फॉल्ट्स। कोई आपसे पूछे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बग्स किसको कहते हैं या फॉल्ट्स किसको कह सकते हैं, तो आप कहेंगे प्रोग्रामिंग एरर्स जो होती हैं उनको हम बग्स बोलते हैं या उनको हम फॉल्ट्स बोलते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज बग्स इज नोन एज डीबगिंग। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय डीबगिंग? तो आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग such type of bugs in C language is known as debugging. These errors are detected either during the time of compilation or execution. ये जो errors आती हैं या तो ये रन टाइम पर आएंगी या फिर ये कंपाइल टाइम पर आएंगी। मीन्स जब आपने कोई एक सोर्स कोड लिखा, आपने उसको कंपाइल कराया, तो कंपाइल कराने पर बहुत सारी एरर आपको अपने प्रोग्राम में दिखाई देती हैं। तो ये प्रोग्राम या तो कंपाइल टाइम पर आएंगी या प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, जब रन हो रहा होगा, तो रन टाइम पर आपको दिखाई देंगी। Thus the errors must be removed from the program for the successful execution of the program. ये जरूरी है कि जब प्रोग्राम को आप रन कर रहे हो तो उस प्रोग्राम के अंदर से वो एरर्स, वो बग्स जो हैं वो रिमूव हो जानी चाहिए, अदरवाइज आपका आउटपुट जो है वो रॉन्ग होगा या फिर वो रन नहीं होगा। There are mainly 5 types of error exist in C programming language. C programming language में 5 टाइप की एरर्स होती हैं। नंबर 1 सिंटेक्स एरर, नंबर 2 रन टाइम एरर, नंबर 3 लिंकर एरर, नंबर 4 लॉजिकल एरर, नंबर 5 सिमेंटिक एरर। वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। सिंटेक्स एरर, व्हाट इज सिंटेक्स एरर? तो सिंटेक्स एरर आर आल्सो नोन एज द कंपाइलेशन एरर। सिंटेक्स एरर को हम क्या बोल सकते हैं? कंपाइलेशन एरर भी कह सकते हैं। एज दे अकर्ड एट द कंपाइलेशन टाइम, और वी कैन से दैट द सिंटेक्स एरर आर थ्रोन बाय द कंपाइलर्स। These errors are mainly occur due to the mistake while typing or do not follow the syntax of the specified programming language. ये syntax error कब आती है? syntax error तब आती है जब हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो ना कर रहे हों या फिर हमने टाइपिंग मिस्टेक कर दी हो। इस तरीके की जो एरर्स होती हैं वो कंपाइलर जो है वो जनरेट कर देता है। जैसे कि हमने कंपाइलर की डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड कर लेता है और एक लिस्ट बना लेता है कि इस प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पर एरर है, और वो पूरी की पूरी लिस्ट यूजर को शो करवा देता है। तो सेम वही सिंटेक्स एरर जो है वो कंपाइलेशन एरर्स होती हैं और ये कंपाइलर ही इसको यूजर को बतलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की तरीके से समझेंगे। If we want to declare a variable of integer type, तो we write integer a। integer a अगर आप ऐसे लिखते हो तो this is the correct form, और suppose that integer a को आप अपने प्रोग्राम में ऐसे लिख देते हो कैपिटल INTA, तो this is an incorrect form। ये कैसी है? सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर क्यों है? कि जो प्री डिफाइंड कीवर्ड INT से बना हुआ है आपने उसका डेफिनेशन चेंज कर दिया, आपने उसका मीनिंग चेंज कर दिया। Commonly errors occurred syntax error are, जैसे if we miss the parenthesis, ये वाला ब्रैकेट आप भूल जाते हो लगाने से, या displaying the value of a variable without its declaration, जैसे आपने integer a तो अपने प्रोग्राम में लिखा नहीं और डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या करा दी? इनिशियलाइज a is equal to 10 लिख दी। ऐसी एरर आ सकती है। या आप अपने स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं, if we miss the semicolon at the end of the statement etc. तो these are the syntax error. For example, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h integer main a is equal to 10 printf the value of a is %d, यानी a की वैल्यू को प्रिंट करिए एंड रिटर्न 0। आप बता सकते हैं इस प्रोग्राम में क्या एरर है?
इस प्रोग्राम में जो एरर है वो ये है कि आपने a की वैल्यू 10 असाइन तो की है, लेकिन a वैल्यू को डिक्लेयर नहीं किया है। डिक्लेयर का मतलब इंटीजर a नहीं लिखा है। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके और ये क्या आउटपुट देता है। ये था हमारा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम एरर देखते हैं, क्या एरर आती है। ये हमारे पास टर्मिनल, इस टर्मिनल पर हमने अपने प्रोग्राम को किया कंपाइल किया और हमने क्या एरर देखी। एरर ए, अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन a इज इक्वल टू 10, अनडिक्लेयर्ड। और देखो लिखा भी है नोट, NOT नोट, अगर आप पढ़ रहे हो, each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं रन टाइम एरर। अभी आपने समझा था कंपाइल टाइम एरर या फिर सिंटैक्स एरर। तो रन टाइम एरर्स वो एरर्स होती हैं जब आपका प्रोग्राम कंपाइल टाइम पर तो कोई एरर दिखा नहीं रहा, यानी जब आपने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया उस समय पर आपके कंपाइलर ने कोई एरर नहीं दिखाई, मींस उस सोर्स कोड का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट कोड बना दिया। अब आप जब उस ऑब्जेक्ट कोड को अपनी मशीन से रन कर रहे हो तब एरर जनरेट हो रही है। तो इस तरीके की एरर को हम क्या बोल देते हैं, रन टाइम एरर। प्रोग्राम को जब मशीन से हम एग्जीक्यूट करवाते हैं उस समय पर जनरेट होने वाली एरर को क्या बोला जाता है, रन टाइम एरर। समटाइम्स द एरर्स एग्जिस्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम even after the successful compilation known as runtime errors, when the program is running and it is not able to perform the operation in the main causes of runtime error. For example, the division by zero is common example of runtime error. These errors are very difficult to find as the compiler does not point to this error. मीन्स आपने अपने प्रोग्राम में कहीं लॉजिकल एरर कर दी है, सिंटेक्स एरर नहीं है बट लॉजिकल एरर है। उस एरर को जब आप रन कर रहे हैं तो वो रन टाइम पर शो कर रहा है। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। हमने अपने प्रोग्राम को यहाँ पर किया टाइप, इस प्रोग्राम को किया सेव, नहीं ये कॉपी नहीं हुआ अभी, कॉपी करिए एंड देन इसको यहाँ पर पेस्ट करिए। हाँ, सेव करिए प्रोग्राम को। आप प्रोग्राम समझ लीजिए, इंटीजर मेन, इंटीजर a इज इक्वल टू 2, इंटीजर b इज इक्वल टू 2/0। देखिए जब किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो जब हम डिफाइन नहीं कर सकते वो वैल्यू कैसे प्रिंट होगी। ठीक है, तो हमारा जो मशीन है उसके लिए क्या एक एरर जनरेट करता है वो देखते हैं। तो देखिए हमने अपने प्रोग्राम को किया कंपाइल और कंपाइल करने पर एक एरर इसने दिखाया, नहीं कंपाइल तो हो गया, हमने एक एरर देखी यहाँ पर, डिवीजन बाय 0 एरर लिखा ना, डिवीजन बाय 0 एरर, जबकि ये कंपाइल टाइम एरर नहीं है, ये रन टाइम एरर है। ठीक है, डिवीजन बाय 0। तो हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से देखा, इन मेन फंक्शन वार्निंग डिवीजन बाय 0, ये वार्निंग है, ये एरर नहीं है। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे पास वार्निंग है। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करवा भी दें तो देखिए क्या आउटपुट आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन कोर डम्प्ड, ये एरर आपको दिखाई दे रही है, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन कोर डम्प्ड, इस तरीके की एरर। नाउ लिंकर एरर। लिंकर एरर्स आर मेनली जनरेटेड व्हेन द एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट क्रिएटेड। मीन्स लिंकर एरर तब क्रिएट होती है जब आपके सोर्स कोड का एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल नहीं बन रहा हो। मीन्स प्रोग्राम तो कंपाइल हो गया,
ऑब्जेक्ट कोड तो उसका बन गया, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड के बाद उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बन रही। मीन्स कुछ फाइलें ऐसी हैं जो आपके प्रोग्राम के साथ लिंक नहीं हो रही हैं, उन फाइलों के थ्रू आपका जो एग्जीक्यूटेबल कोड है वो जनरेट नहीं हो पा रहा, वो नहीं बन पा रहा है। तो आइए देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये है, इंटीजर वो हैज इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन, इंटीजर a इज इक्वल टू 78, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ a इज दिस एंड रिटर्न 0। इस प्रोग्राम में आपको कोई एरर दिखाई देती है, इस प्रोग्राम में आपको कोई एरर दिखाई देती है। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करा के। मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नहीं पेस्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कॉपी करो, इस प्रोग्राम को यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ये पेस्ट हो गया। सेव करते हैं इस प्रोग्राम को एंड देन रन करते हैं। कंपाइल किया, कंपाइल करने पर देखिए क्या हो रहा है, क्या लिख रहे हैं, अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन, अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन, एरर आईडी रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस। ये क्यों आ रहा है, इसका रीज़न मैं आपको बतला दूं। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो जो मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन की डेफिनेशन आपने चेंज कर दी। यहाँ पर एम स्मॉल से होता, एम छोटे लेटर से लिखा जाता, इसके थ्रू एक एरर यहाँ पर जनरेट हो रही है। उस एरर को हम क्या बोल रहे हैं, अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन कलेक्टेड टू आईडी रिटर्न 1 एग्जिस्ट स्टेटस। तो दिस टाइप की एरर जो है वो हमारी लिंकर एरर होती है। या आप दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूं, a इज इक्वल टू 2 और नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखूं इंटीजर b और नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखूं b इज इक्वल टू पावर 2, b या 2, a,2 ऐसे लिख दूं और मैं किसको प्रिंट कराऊं, b को प्रिंट कराऊं। तो आप बता सकते हैं क्या एरर होगी। एरर ये होगी कि इस पावर फंक्शन का जो मेन हेडर फाइल है वो मिसिंग है। मिसिंग है मतलब सबसे पहले इसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। तो जब कोई फाइल का मिसिंग हो जाती है इस तरीके से, तो वो जो एरर होती है वो लिंकर एरर होती है। कभी कभी आपने देखा भी होगा अपने प्रोग्राम में, जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तो वहां पर लिखा था लिंकर एरर। तो लिंकर एरर लिंकर से जनरेट होती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल एरर। द लॉजिकल एरर इज एन एरर दैट लीड्स टू एन अनडिजायर्ड आउटपुट। These error produce the incorrect output, but they are error free, known as logical errors. Means आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं, आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं, बट जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। इस तरीके की एरर्स को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर, क्योंकि लॉजिकल एरर यूजर के थ्रू ही जनरेट होगी। जैसा यूजर चाहता है वैसा आउटपुट नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि यूजर ने अपने प्रोग्राम में जो लॉजिक लिखा है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दीज टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स आर मेनली डन बाय द बिगनर्स। द अकरेंस ऑफ दोज एरर्स मेनली डिपेंड्स अपॉन द लॉजिकल थिंकिंग ऑफ डेवलपर। इफ द प्रोग्रामर साउंड लॉजिकली गुड, then there will be fewer chance of these error. For example, ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम रन कराते हैं और देखते हैं आपने इसमें क्या एरर की है।
देखिए ये आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इस प्रोग्राम में ध्यान से देखिए कि क्या एरर हो सकती है। प्रोग्राम सही लिखा हुआ है सॉरी, प्रोग्राम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बट इसमें कुछ एरर है। प्रोग्राम क्या है आइए समझते हैं। प्रोग्राम ये है कि इस प्रोग्राम में एक सम नाम का वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का, और इसकी वैल्यू क्या है 0 से इनिशियलाइज हो रखी है। एक के वेरिएबल है जिसको 1 से इनिशियलाइज किया, एक फॉर लूप लगाया है इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन 10 एंड देन i प्लस प्लस, सम इज इक्वल टू सम प्लस के एंड देन के प्लस प्लस। मीन्स ये प्रोग्राम 10 नंबर का सम फाइंड आउट कर रहा है, यानी 10 नंबर 1 से लेकर के 10 नंबर का सम प्रिंट कर रहा है। हम सम को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखते हैं क्या एरर आती है। सेव एंड देन रन। आप बताइए जब आप अपने प्रोग्राम में 10 नंबरों का सम निकालेंगे तो सम कितना आना चाहिए? 1 से लेकर के 10 तक का सम कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से 55 होना चाहिए, बट प्रोग्राम ने क्या आउटपुट दिया है वो देखिए। प्रोग्राम आउटपुट क्या दे रहा है? द वैल्यू ऑफ सम इज 1। ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका रीजन एक है, वो देखते हैं। इसका रीजन ये है कि आपने जो फॉर लूप को यहाँ पर चला रखा है, फॉर लूप के लास्ट में यहाँ पर आपने उसको टर्मिनेट कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि फॉर लूप आपका 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ एक बार, यानी i इज इक्वल टू 1 के लिए चलेगा और उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो जिस समय i इज इक्वल टू 1 के लिए चलेगा उस समय सम की वैल्यू क्या होगी? सम इज इक्वल टू सम प्लस के। सम की वैल्यू है 0 और k की वैल्यू है कितनी? 1। तो 0 प्लस 1 कितनी हो गई? 1। और हमने फिर क्या प्रिंट करा दिया? सम को। तो सम की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास? 1 आ चुकी है। तो इस तरीके की एरर जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर। एज वी पुट द सेमीकोलन आफ्टर लूप। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेंटिक एरर? तो सिमेंटिक एरर्स आर द एरर्स दैट अकर व्हेन द स्टेटमेंट आर नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द कंपाइलर। एक बार फिर से समझिए, सिमेंटिक एरर वो एरर होती हैं जब आपके कंपाइलर को यही समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके से लिखा गया है, उसको हम सिमेंटिक एरर बोलते हैं। सिमेंटिक एरर्स आर द एरर्स दैट अकर्ड व्हेन द स्टेटमेंट आर नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द कंपाइलर। जब आपके कंपाइलर को वो स्टेटमेंट समझ में नहीं आता कि ये क्या लिखा है, तो इस तरीके की एरर को हम क्या बोलते हैं? सिमेंटिक एरर बोलते हैं। Following are the cases for semantic error. Number 1, use of a uninitialized variable. Used of an uninitialized variable. Integer I is equal to I plus 2. Use of an uninitialized value. देखिए किस तरीके से लिखा है, इंटीजर I और I is equal to I plus 2। क्या ये आपको सही लग रहा है? ये सही नहीं है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, i तो डिक्लेयर है, बट i में क्या इनिशियलाइज करा रहे हैं? वैल्यू i इज इक्वल टू i प्लस 2। बट व्हाट इज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ i? अगर हम ये लिख देते i इज इक्वल टू 1 प्लस 2 तब तो ये ठीक होता, लेकिन हमने क्या लिखा है? i इज इक्वल टू i प्लस 2। तो हमें i की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, हमें i की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए ये एक एरर जनरेट होगी, सिमेंटिक एरर जनरेट हो जाएगी। सेकेंड है टाइप कॉम्पैटिबिलिटी। इंटीजर b इज इक्वल टू मथुरा। ध्यान से समझिए क्या लिखा है? इंटीजर b, और इस b नाम के वेरिएबल में क्या हम इनिशियलाइज करा रहे हैं? मथुरा। और मथुरा क्या है? हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को हम किस में इनिशियलाइज करा रहे हैं? हम करा रहे हैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल में, तो ये पॉसिबल नहीं है। एरर इन एक्सप्रेशन, कुछ हम एरर्स जनरेट कर देते हैं एक्सप्रेशन में, वो देखिए। जैसे हमने लिखा है इंटीजर a, b, c। a प्लस बी इज इक्वल टू सी। एक्सप्रेशन आपके अकॉर्डिंग सही हो सकती है, बट कंप्यूटर के हिसाब से, ये प्रोग्राम के हिसाब से ये सही नहीं है। a प्लस बी इज इक्वल टू सी, आप क्या कहना चाहते हैं? c की वैल्यू a प्लस बी में आ जाए, या आप ये कहना चाहते हैं कि c में वैल्यू a प्लस बी आ जाए? अगर आप ये चाहते हैं c में वैल्यू a प्लस बी आ जाए तो इसको आप ऐसे लिखिए, c इज इक्वल टू a प्लस बी।
अदरवाइज ये ऐसे नहीं हो सकता कि c की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए a प्लस बी में। दिस इज एक्सप्रेशन एरर। नेक्स्ट है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। इट मीन्स इंटीजर a 10 का मतलब एक एरे आपने डिक्लेयर किया 10 नंबर का, और आप क्या कह रहे हैं a ऑफ 10 में 34 वैल्यू को इनिशियलाइज करा दीजिए। जबकि हम बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि एरे का इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट वाली वैल्यू n-1 तक जाती है। तो अगर हम यहाँ पर एक एरे डिफाइन कर रखा 10 नंबर्स का, तो 10 नंबर्स इसके अंदर होंगे, बट इसकी जो पोजीशन होगी इंडेक्सिंग की वो 0 से लेकर के 9 तक जाएगी। और हम यहाँ पर कौन सा इंडेक्स यूज कर रहे हैं, a ऑफ 10, इसलिए ये क्या मैसेज जनरेट करेगा, आउट ऑफ बाउंड का। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। नाउ इस प्रोग्राम को करते हैं सेव। सेव करने के बाद देखिए क्या एरर है। इस प्रोग्राम को समझ लीजिए क्या लिखा है, ए बी सी, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 1। तीनों ए बी सी कैसे इंटीजर टाइप के, और क्या एरर लिखी है हमने, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी सी को इनिशियलाइज कर दो ए प्लस बी में। नाउ देखते हैं रन करा करके, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। कंपाइल टाइम पर ही एरर जनरेट हो गई। क्या, a प्लस बी इक्वल टू सी, सिमेंटिक एरर। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा सिमेंटिक एरर। तो सिमेंटिक एरर वो एरर होती है जब आपके कंपाइलर को वो स्टेटमेंट समझ में ही नहीं आता। अब ये स्टेटमेंट समझ में ही नहीं आ रहा कि a प्लस बी में c वैल्यू कैसे इनिशियलाइज होगी। क्या आप कर सकते हैं a प्लस बी में c को इनिशियलाइज? नहीं कर सकते। तो इस तरीके के एरर को सिमेंटिक एरर बोला जाता है। नाउ ये थे हमारे 5 टाइप के एरर्स जो हम जनरली अपने प्रोग्राम में कर देते हैं। अब ये एरर 2 तरीके से जनरेट होते हैं, या तो कंपाइल टाइम जनरेट होंगे या फिर ये रन टाइम जनरेट होंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम? सो कंपाइल टाइम एंड रन टाइम आर 2 प्रोग्रामिंग टर्म्स used in the software development. Compile time is the time at which the source code is converted into an executable code, while the runtime is the time at which the executable code is started running. बहुत अच्छे से समझिए इस चीज़ को। ये compile time और run time क्या होते हैं? Compile time is the time at which the source code वो जो आपने एडिटर पर लिखा है is converted into an executable code, while the runtime is the time at which the executable code is started running. कंपाइल टाइम पर आपका जो सोर्स कोड है वो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल कोड में, तो उसको तो हम बोलेंगे कंपाइल टाइम। और दूसरा वो एग्जीक्यूटेबल कोड जब हमारा मशीन पर रन होना शुरू कर देगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, रन टाइम। बोथ compile time and run time refer to different types of error. Compile time error. Compile time errors are the errors that occur when we write the wrong syntax. If we write the wrong syntax or semantics of any programming language, then the compile time errors will be thrown by the compiler. The compiler will not allow to run the program until all the errors are removed from the program. When all the errors are removed from the program, then the compiler will generate the executable file. Compile time errors can be syntax error और दूसरा semantics error. Syntax error हो सकती हैं या फिर वो semantic error हो सकती हैं. Syntax error when the programmer does not follow the syntax of any programming language, then the compiler will throw the syntax error. For example, जैसे आपने लिखा है integer a, b, तो the above declaration generates the compile time error as in C. Every statement ends with the semicolon, but we put a colon at the end of the syntax. ध्यान से देखिए इसको। अभी आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा इसको कैसे, इंटीजर a, b, लेकिन आपने ध्यान से ये नहीं देखा कि ये कोलन लगा है या सेमीकोलन लगा है। यहाँ पर कोलन लगा, अगर यहाँ पर सेमी कोलन होता तो ये सही होता। तो इस तरीके की एरर जब आप कर देते हैं तो कंपाइलर उनको यूजर को शो करा देता है कि ये आपने सिंटेक्स एरर कर दी है, सिंटेक्स में एरर है, यहाँ पर सेमी कोलन की जगह आपने कोलन यूज कर लिया है।
नेक्स्ट देखते हैं सिमेंटिक एरर। तो सिमेंटिक एरर एग्जिस्ट व्हेन द स्टेटमेंट आर नॉट मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। मीन्स जब कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका कोई मीनिंग कंपाइलर के लिए समझ में ना आ रहा हो, तो उस तरीके की एरर को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक एरर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू सी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि c की वैल्यू को इनिशियलाइज करा दीजिए a प्लस बी में, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की एरर को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक एरर कहते हैं। नाउ रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर्स आर द एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के बाद बट कब अकर होंगी, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। द एग्जाम्पल ऑफ रन टाइम एरर्स आर डिवीजन बाई जीरो एटसेट्रा। दीज एरर्स आर नॉट इजी टू डिटेक्टेड एज द कंपाइलर डज नॉट पॉइंट टू दीज एरर्स। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम एरर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या डिफरेंट है। कंपाइल टाइम एरर, द कंपाइल टाइम एरर आर द एरर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एट द कंपाइल टाइम एंड दे आर डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। इधर रन टाइम, द रन टाइम एरर आर द एरर्स विच आर नॉट जनरेटेड बाय द कंपाइलर एंड प्रोड्यूस एन अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट एट द execution time. Second, in this case the compiler prevents the code from execution if it detects an error in the program. Either in this case the compiler does not detect the error, so it cannot prevent the code from the execution. It contains the syntax and semantics error such as missing semicolon at the end of the statement, or either it contains the error such as division by zero, डिटरमाइनिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। इस तरीके की एरर को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। एक एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल है, कंपाइल टाइम का, और ये एग्जांपल किसका है, रन टाइम का। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम एरर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। ये था आज का लेक्चर जो आपको समझ में आ गया है। बाकी हम कल देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आप अपनी तैयारी घर पे करते रहिए, आप अपने घर पर सुरक्षित रहिए, बाहर ना निकलें, बहुत अच्छा रहेगा। आजकल जो ये कोरोना नाम की बीमारी है ये बहुत फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, तो आप अपने आप को सेफ रखें और घर से बाहर ना निकलें। थैंक यू।